जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तेरा लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता। तेरा लख लख शुक्राना जी। संगत जी, ਕੱਲ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਟਿਨਿਨ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਟਿਨਿਨ ਤਾਂ 5.39 ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਪਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਟਮਕ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਪੇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਬਸ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी, कल मेरे काफ़ी मंथ्स बाद मेरे हेडेक हो रही सी और मैं मेडिसिन नहीं ले रही सी। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾफ़ੀ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਏ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਡੇਕ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਡੇਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਸਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਸਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਘਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਨਰ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਝਸੇ ਤੇਰੀ ਜੋ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਣ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪੂਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਬਰਸੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, 2 ਦਿਨ 'ਚ ਆने वाले 2 दिन 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। लेकिन तू अपना मुंह मत उतार सुबह उससे पहले कि तेरे पति का अटका हुआ काम भी गुरु जी कहते पूरा हो जाएगा। तू शुक्राना करी चल, बाकी बस तेरा प्यो आपे सब कुछ संभाल लेगा। सिर्फ तू शुक्राना कर, सिर्फ तू शुक्राना कर, सिर्फ तू शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, लख लख शुक्राना। थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। पूरी संगत को जय गुरु जी की। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ पूरी संगत के साथ। और गुरु जी का शुक्राना जो उन्होंने मुझे बर्थडे से पहले 6 तारीख को डुगरी में बुलाया। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पहली बार डुगरी गई थी और गुरु जी ने इतना अच्छा मौसम किया, इतना ठंडा मौसम किया। शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना आपका। और एक शुक्राना, एक दिन मतलब मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो गुरु जी का मैसेज आया कि बहुत गर्मी लगती है तुझे, ले 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी। और सच में बारिश हुई और उस दिन से आज तक बारिश ही हो रही है। शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना आपका। आप अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हो, पूरा हर बात का ध्यान रखते हो, उनकी छोटी छोटी बातों को पूरी करते हो। शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। सर्वत्र का भला करना मेरे गुरु जी, सर्वत्र का भला करना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज ये सत्संग आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ हरियाणा फतेहाबाद से। तो गुरु जी का अब बर्थडे भी हो चुका और बर्थडे भी सबने बहुत अच्छे से मनाया। आप सबने भी मनाया होगा, हमने भी जो बन सका वो किया। मेरे से ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाया, लेकिन गुरुपा का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि अगर तुम बड़े मंदिर नहीं आ सकते, लंगर प्रसाद नहीं खा सकते, तो अपने घर पे ही तुम हलवा, पूरी और आलू की सब्ज़ी का भोग लगाओ और उसे ग्रहण करो। तो मैंने भी वही किया सेम। मैंने देसी घी में पूरियाँ और सब्ज़ी भी देसी घी में आलू की बनाई और बहुत ही टेस्टी सा हलवा भी बनाया। हालांकि मुझे शुगर है, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुपा वही खिलाते हैं जिस चीज़ के लिए रोका हुआ होता है। तो उस दिन मैंने भी प्रसाद समझ के वो खाया। हालांकि मेरी तो डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई थी, 2-3 दिन मुझे आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा था और तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता है, इसे आप नेगेटिव मत लो, क्योंकि जो भगवान जी का भोजन प्रसाद है उससे 1 मिनट में आराम नहीं आता। हो सकता है मेरे पे भी कोई दुख था तो वो शायद लंगर खाने घर का वो भोग लगा हुआ प्रसाद खाने के बाद भी शुगर बढ़ गई थी। जबकि मैंने सुना था कि गुरुपा अपने मंदिर में शुगर वालों को मिठाई ज़्यादा खिला के भेजते हैं तो उनकी शुगर डाउन चली जाती है। पर मेरी थोड़ी सी आंखों पे भी आ गई है और बड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, और तबीयत भी ठीक नहीं है। पर ये सब तो छोड़ो, ये चलता रहता है लाइफ में। तो गुरुपा वैसे हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। हमारे शरीर पे कष्ट आए, हालांकि मुझे पता है कि शुगर बढ़ने से तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और चक्कर से आने लगते हैं, पर मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहती। अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें अच्छे से गुरुपा संभाल रहे हैं। तो कल एक सत्संग सुना था एक आंटी जी का, उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हम सुख में मतलब अगर गुरुपा हमें सुख देते हैं तो सुख में तो कोई भगवान को याद ही नहीं करता, तो दुख आने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दुख में ही इंसान भगवान से जुड़ता है। तो ये भी मेरी भी सेम यही थॉट है कि अगर दुख नहीं होंगे तो सच में हम लोग भगवान को भूल ही जाएंगे। और मैं खुद ये कह रही हूँ कि जब मैं बिल्कुल हैप्पी मूड में होती हूँ तो पूजा भी टालती जाती हूँ कि चलो कल कर लूँगी, कर लूँगी, रोज़ तो करती हूँ। तो ऐसा अक्सर हर किसी के साथ होता है। हमारा मन बहुत ही लालची होता है, चाहे हम कितने भी रजे हुए क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन भी बहुत, हर किसी का मन लालची होता है। तो जब हम सुख में होते हैं ना, तो हम भगवान जी को अपने से दूर ही कर देते हैं किसी न किसी रीज़न से, या तो कहीं और हम बिज़ी हो जाएंगे तो अवॉइड कर देंगे। तो दुख आना भी बहुत ज़रूरी है, दुख में ही हम गुरुपा की नज़दीकियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैं बचपन से ही नमः शिवाय का जाप करती आई हूँ, लेकिन जब से गुरु से जुड़ी हूँ तो अब गुरुपा का ही मंत्र मेरे मुंह पे चढ़ गया है। तो मैं नमः शिवाय का जाप भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। गुरुपा उसके लिए मुझे कृपा करके आशीर्वाद दे कि मैं वो मंत्र भी कंटिन्यू कर सकूं। और गुरुपा मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। मेरी आँखों का थोड़ा सा गुरुपा ठीक करो, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से 6 महीने से कंटिन्यू आपका जल डाल रही हूँ, लेकिन कुछ भी ख़ास फ़र्क नहीं है और आँखें और ज़्यादा वीक होती जा रही है। अब तो मुझे दिखना भी बंद हो गया है गुरुपा। लेकिन कल ही मैंने सत्संग सुना जिसमें था कि तू लोटे को सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसीलिए उसकी ब्लेसिंग तुझे नहीं मिल पा रही है। तो गुरुपा, लोटा तो मंदिर तो मैं कभी आज तक आपके पहुंच ही नहीं पाई दिल्ली में, तो घर के ही तांबे का जो लोटा था उसी को मैंने आपकी ब्लेसिंग के लिए लगाया था। लेकिन मैं सिर्फ 3 बार मंत्र जाप करके और आपको टच करके वो रखा करती थी। तो कल मैंने सत्संग में सुना कि 7 बार तो मंत्र जाप करना होता है और गुरुजी को टच करके वो रखना होता है। तो गुरुपा शायद मेरे से यही मिस्टेक हो रही हो। बाकी मैं उसे नींबू से ही साफ़ कर रही थी, लेकिन उसमें काफ़ी धब्बे और दाग धब्बे फिर भी हो जाते हैं। वो एकदम क्लीन कर दो तो भी 2 दिन बाद वो फिर वैसे ही हो जाता है। तो गुरुपा, अगर इसमें भी मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो मुझे प्लीज़ क्लियर करवाना सत्संग के थ्रू। और गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे प्लीज़ मेरी गलती मिस्टेक बताना, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। और आप अपनी कृपा बनाए रखना, पर प्लीज़ गुरुपा हमारी आँखें ठीक करो। मुझे तो आँखों की बहुत दिक्कत हो रही है
और हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा दिखाने के लिए शायद से, पर आपकी ब्लेसिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा कृपा। और सत्संग लंबा हो जाएगा तो मैं दूसरे सत्संग में बाकी सब शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी आंटी जी को, अंकल जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। बात ये है संगत जी, वैसे तो अब मुझे गुरु जी का मैसेज नहीं आया कि मैं शुक्राना करूं, लेकिन गुरु जी ने मेरी जान बचाई तो, और गुरु जी ने मुझे कहा कि तेरे भाई को मैंने तरक्की ब्लेस की है, और तेरा भी जो मेरा ऑनलाइन का काम था मैं बंद करने वाली थी कि चलता तो है नहीं, तो गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि तेरा ऑनलाइन काम चलेगा, थोड़ी सब्र रख, और लेकिन शुक्राना करती रह। मैं तुम्हारे भाई को तरक्की ब्लेस कर रहा हूँ, वो तेरे पति की कमाई में भी बरकत होगी, तो मुझे शुक्राना किया कर। तो बात ऐसी है संगत जी, घर के ही कुछ लोग हमारे बाहर से आए थे, तो उस दिन काफ़ी मुझे, जब वो आते हैं, जैसे जैसे ही वो हमारे शहर में एंटर करते हैं, पता नहीं वो शायद कोई विभूति या कोई राख वाख हमारे शहर में एंटर करते ही वो डाल देते हैं। तो मुझे बड़ी घबराहट होने लगी। मेरे पति ने कहा कि वो मतलब कि एंटर हो गए हैं हमारे शहर में, वो आ रहे हैं हमारे घर में आ रहे हैं। मेरे देवरानी की बात कर रही हूँ संगत जी। तो मैं दोपहर को अच्छी से सोई हुई थी, तो मेरे मतलब कि एकदम से घबराहट होने लगी, बेचैन होने लगा मन। तो मैं एकदम से सोचा कि ये क्या होने लगा मुझे। और पहले भी जब वो आते हैं तो मेरी बेटी बीमार पड़ जाती है, हम उसको तुरंत दवाई दिलाकर लाते हैं, लेकिन बीमारी का पता ही नहीं चलता। जब वो चले जाते हैं तो मेरी बेटी अपने आप ही ठीक हो जाती है संगत जी। तो काफ़ी हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसा, मेरी सास भी मेरे साथ झगड़ा करने लगती है, एकदम से हाइपर से हो जाते हैं हम जब भी वो आते हैं हमारे घर में। लेकिन इस बार गुरुजी ने ज़्यादा तो ऐसा होने नहीं दिया, सिर्फ मुझे घबराहट और बेचैनी हुई। तो मैं जल्दी से मैंने जल प्रसाद निकाला अलमारी से और छीटा दिया अपने ऊपर, अपने रूम में चारों कोनों में दिया। तो मेरी बेचैनी और घबराहट कम हुई संगत जी। फिर वो हमारे घर में एंटर हुए, चाय वाय मेरी सास ने ही बना दी, तो मैंने तो नहीं कुछ पूछा, ज़्यादा नहीं बुलाया उनको। मन में मेरे थोड़ा सा अब रुष्ट है कि जो लोग हमें मारने के प्लानिंग बना रहे हैं, इनसे क्या हाल चाल मैं पूछूं, या मैं इनको क्या कहूं कि हम अभी तक बचे हुए हैं, आप और मारो हमें, आप कोशिश कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को बुलाने का या हाल चाल पूछने का कोई मतलब पैदा नहीं होता, जब सब कुछ गुरुजी ने साफ साफ दिखा दिया है। तो जब घर में एंटर हुए फिर से मुझे इतनी घबराहट होने लगी संगत जी, मन बेचैन होने लगा, ऐसा होने लगा कि मैं घर से भाग जाऊं। तो मैंने फिर से एक बार अपने ऊपर छिटा दिया जल प्रसाद का, कमरे में दिया, अपनी बेटी के ऊपर भी दिया कि वो लोग मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा जलते हैं। मैंने बेटी को अडॉप्ट किया हुआ है तो वो हमारा हक खाना चाहते थे, लेकिन अब मैंने गुस्से में कह दिया था कि तो क्या हुआ, मेरे बेटा नहीं है बेटी है, मेरा सब कुछ अब मेरी बेटी का है, मैं इसको दे के जाऊँगी, अपने दिमाग को दे के जाऊँगी। तो उनको चिढ़ मची हुई है कि उन्होंने बच्चा गोद क्यों ले लिया, ये दोनों मर जाते, सब कुछ हमारे बच्चों का ही तो था। तो मेरी बेटी से उनको बहुत जलन है जी कि ये पढ़ ना पाए, लिख ना पाए, नालायक रहे, स्कूल ना जाए। मेरी बेटी काफ़ी ज़िद करती है, स्कूल जाती नहीं है, मुझे बहुत टेंशन है इस बात की। वो कहती है कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल से हटा लो, मुझे नहीं जाना। तो उस दिन भी संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जब ये आते हैं तो मेरी बेटी बीमार पड़ जाती है। तो मैंने अपनी बेटी ऊपर भी जल प्रसाद छिड़का और चंदन का टीका उसको लगा दिया धीरे से। मेरी उसकी बेटी कह रही थी देवरानी की कि ये अलमारी खोल दो ताई, मैंने नहीं खोली, उसमें मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है और चंदन टीका वगैरह जल प्रसाद रखा हुआ है। मुझे शक रहता है कि मेरी सास मेरे जल प्रसाद को बदल ना दे, इसको फेंक ना दे, इसमें खाली पानी ना भर के रख दे। तो मैंने उसको लॉक किया हुआ है संगत जी। अचंभे की बात तो ये है कि जब वो ना गए लोग, जब वो लोग गए तो उसके बाद जब मैं अपने सारे कमरों को चेक करने लगी तो हमारे जो मशीन है, फुली मशीन है, उसका ढक्कन खुला हुआ था। तो मुझे संगत जी उसी वक्त काफ़ी शक हुआ कि मैं तो जब भी कपड़े धोती हूँ तो
ढक्कन को दोबारा से लॉक कर देती हूँ तो ये ढक्कन खुला हुआ कैसे है। तो वो औरत ज़रूर इसमें जा तो कोई विभूति छिड़के के गई है, राख डाल के गई है, या कोई धागा वगैरह डालकर वो इस मशीन में गई है कि भाभी इसको छुए, कपड़े धोए, उसको करंट लग जाए। तो संगत जी 2 दिन बाद मैं अपने मायके चली गई, तो मुझे कपड़े धोने का मौका नहीं मिला। आकर मैंने जैसे ही फुली मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे संगत जी, फिर मैंने ना निकाल लिए और मैंने छोटी मशीन में ही कपड़े धोए। गुरुजी ने मुझे पता नहीं क्या थॉट डाला, मैंने उसमें फिर से नहीं कपड़े धोए, मैंने छोटी मशीन में कपड़े धोने लगी। फिर मेरी सास मुझे देखने के लिए आई, चेक करने के लिए आई है कि कौन से मशीन में इसने लगाई हुई है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी टांग में इतना ज़्यादा दर्द था। मुझे गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया था कि किसी संगत की टांग की जो पल्स होती है वो कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उनकी टांग में दर्द रहता था। और जब मैं अपने मायके की, वहाँ मुझे आंटी ने भी टोक लगाई कि तुम्हारी इन टांगों में और पैरों में अजीब से ये नाड़ियाँ क्यों दिखती हैं, तुम्हारी टांगों में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम अपना चेकअप करवाओ। तो संगत जी मैं यहाँ से दवाई अपने लेके गई थी, ससुराल से लेके गई थी अपनी टांगों की दवाई। तो वहाँ मैंने गुरुजी जी का सत्संग अटेंड किया, जन्मदिन था गुरुजी का, वहाँ अटेंड किया सत्संग। वहाँ मेरी टांगें बिल्कुल ठीक हो गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये तो चमत्कार हो गया, मेरी टांगें बिल्कुल ठीक हो गई, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर जब मैं वापस आई तो संगत जी जब मैं कपड़े धोने लगी तो मेरी टांगों में फिर से दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा संगत जी। मैंने जल प्रसाद पिया भी और टांगों पर भी छिड़का, कुछ देर ही आराम रहा, फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा संगत जी। दर्द के कारण घबराहट होने लगी। उसी वक्त गुरुजी की मुझे टेलीपैथी हुई कि जब मैं कपड़े धो रही थी ना संगत जी, वहाँ पर मैंने गुरुजी का सत्संग लगा लिया था, वहाँ पर टेलीपैथी हुई कि तुम पर तो बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा संकट था, मैंने उसको काट दिया, तुम्हें उस खतरे से बचा लिया। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो मैं उस दिन ही समझ गई थी, जिस दिन मैंने मशीन के ढक्कन को खुला हुआ देखा था, तो मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि मैं इस मशीन में कपड़े ना धोऊं, और आपने भी मुझे इस मशीन में कपड़े धोने के लिए का आदेश नहीं दिया। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरी आंखों में और पेट में बहुत सारी दिक्कत थी, जिसके गुरुजी ने मुझे आंखों और पेट के काफ़ी सारे सत्संग संगत जी सुनवाए। मुझे तो ऐसा हो गया था कि मेरे पेट में बड़ी कोई बीमारी बन गई है, अब मैं ठीक नहीं होंगी, ये मेरे तो शायद मरने के बाद ही ये बीमारी ठीक होगी। लेकिन गुरुजी ने मेरे कष्ट को काफ़ी कम कर दिया। तो अब मेरा दवाई लेने का मन भी नहीं करता, मैं गुरुजी को कहती हूँ मेरा गुरुजी मेरी दवाई छुड़वा दे, और मेरी बहन की दवाई को भी छुड़वा दो, उसको भी काफ़ी पेट की प्रॉब्लम है, बहुत बीमार रहती है। वो सत्संग में उस दिन बीच में से उठकर चली गई, उसको काफ़ी दिक्कत थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी उसकी पेट की प्रॉब्लम को भी आप कम करो, जैसे मेरी की उसको भी दवाई लग जाए और कोई और दवाई ज़्यादा खानी जरूर ना पड़े। तो गुरुजी इस तरह मेरी बेटी को, पति को, भाई को, माँ को, बहन के घर परिवार, पति, बच्ची और मुझे सबको ब्लेस करना गुरुजी। आंटी अंकल जी सारी संगत को सबको ब्लेस करना, जैसे हमारे रोग काटे सबके रोग काटना, सबको तंदुरुस्ती प्रदान करना गुरुजी, रक्षा करना गुरुजी और कृपा करना हम पर। मैं सभी देवी देवताओं को शुक्राना करती हूँ। खाटू श्याम जी, मैं अपने दुश्मनों से और बीमारियों से, बहुत तंत्र मंत्र करने वालों से और तंत्र मंत्रों से मैं बहुत हार चुकी हूँ। मेरे दुश्मनों का अब नाश आप ही करना खा और मुझ पर कृपा करने के लिए श्री श्याम जी आपको शुक्राना, श्री कृष्ण जी को शुक्राना, श्री राम जी को, हनुमान जी को, सबको शुक्राना, 9 देवियों को, काली मैया को, सबको शुक्राना, गौ माता का भी शुक्राना जो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेती है। तो इस तरह से गुरुजी आपका भी शुक्राना और सारी संगत का और आंटी अंकल जी का मेरा शुक्राना, सत्संग शेयर करने का और सत्संग का सुनने का भी सबका शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बोलने में कोई गलती होगी तो माफ़ करना आंटी जी अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।